Good morning, dear students. First, let's do Brahmanath for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So good morning, dear students. Welcome back to all of you in your BSM class. In our previous class we discussed about the various features of sole tradership. So I hope all of you have a clear idea about the various features of sole tradership. Let us make a quick revision of that previous class topic. So there are points like one of the most important points, that is unlimited liability. So dear students, what is unlimited liability? That means the liability of the sole trader is unlimited. His personal property also used in the business to pay the business debts. Other points are like ownership. Ownership refers, in case of sole tradership, how many owners are there? Only one person is there who is the owner of the business. So that's why there is only one owner in case of sole tradership business. And the next point is like formation and disclosure. We can easily start a sole tradership business because there is no separate legal entity and there is no specific act in case of sole tradership business, so that we can easily start a sole tradership business. Direct incentive is also there. That means the owner is the sole authority of the sole tradership business. That's why he is able or he can take the whole profit of the business. Okay, if there is loss, then the whole risk bear by the owner. And there is another important point is there, that is the lack of business secrecy or lack of business continuity. Sorry, lack of business continuity. What does it mean? Lack of business continuity, that means the sole tradership business can be stopped at any point of time because there is only one owner. So that's why in case of the disability, in case of the death, in case of the insolvency of the owner, the business may face disclose. ओके, तो बिजनेस बंद होने का चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही ओनर है, तो उसका अगर डेथ हो जाता है तो बिजनेस बंद होने का चांसेस रहता है सोल ट्रेडरशिप के केस में। Let us discuss in this class. We are going to discuss about the various merits of the sole tradership business. If we want to start a sole tradership business, then what are the various advantages? What are the various merits of the sole tradership firm? Merits or advantages of sole proprietorship. The first point is easy in formation and dissolution. So what does it mean? What does it mean? Easy in formation and dissolution. इसका मतलब क्या होता है? That means the sole tradership firm can be easily started and it can be easily dissolved. Easily started means it can be started very easily. That means this point already discussed in our features of sole tradership. But this point suggests that देखो दो words है, एक है formation and the second word is dissolution. Formation means business को start करना, dissolution मतलब business को बंद करना. So in case of sole tradership firm, there is no specific act is there in case of sole tradership firm. So that's why a person can start a sole tradership business if he want to start that. If I want to start a sole tradership firm, then I can easily start it by investing required amount of capital. अगर मेरे पास पैसा है तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ and that business comes under your sole tradership firm. Okay. But in certain cases or in some cases it requires the license. In some cases, for example, what are the cases where we require license to start a business? The cases like if you want to start a wine shop, then you require license for that.
If you want to start a medicine shop, then you require license. If you want to start a petrol pump or gas shop, then in that case also you require license for that business. Okay. Or if you want to start a big restaurant, then in that case also you need to make a license for that. Okay. So here the point says that formation means the sole tradership firm can be easily started. Easily started means there is no specific act which governs the sole tradership business. So a person can easily start a sole tradership firm. But the resolution, as it is very easy to start a sole tradership business, likely this it can be easily dissolved. अगर मतलब ओनर को बिजनेस अच्छा नहीं लगता है तो वो इजीली बंद भी कर सकता है. ठीक है. तो पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक आदमी अगर जिसके पास पैसा है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इजीली स्टार्ट कर सकता है. देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट इज देयर, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी इजीली स्टार्टेड. उसी तरह ही जैसे मतलब स्टार्ट इजीली होता है उसी तरह भी क्लोज भी हो सकता है इजीली. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस आर देयर इन केस ऑफ sole tradership business. And the second point is flexibility in operation. So what does this point suggest? Flexibility in operation. Flexibility इसका मतलब क्या है? Flexibility means changes. Flexibility means changes. Operations का मतलब क्या होता है? जो मेडिकल में ऑपरेशन होते हैं वो होता है क्या? नहीं. हाँ, ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें इजीली चेंजेस हो सकता है. Okay, so that point says that flexibility in the operations of sole tradership business. मतलब क्या है, देखो समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज आप लोगों ने एक होटल खोला, तो होटल में क्या मिल रहा है? आपने एक टिफिन शॉप खोला है जहाँ पर के आप पूरी, करी, बड़ा, उपमा ये सब आइटम्स मतलब बेच रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे मतलब आपने आज एक दुकान खोला था जहाँ पर के आप ये सब टिफिन आइटम्स बेच रहे थे. उसके बाद उसके 2-3-6 महीने बाद आपने ऑब्जर्व किया आपका जो बिजनेस है वो ठीक से नहीं चल रहा है. तो अगर बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा. तो आपने क्या डिसाइड किया? आपने मार्केट को देखा और मार्केट को देख के ये डिसाइड किया कि हम लोग पूरी बड़ा नहीं करके क्या करेंगे, एक फास्ट फूड शॉप खोलेंगे. तो फास्ट फूड शॉप खोलने के लिए आप लोगों ने डिसाइड किया. तब जब आप लोगों ने फास्ट फूड शॉप खोलने के लिए डिसाइड किया तब आपने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक वेज फास्ट फूड शॉप खोलेंगे जहाँ पर कि ओनली वेज आइटम्स के, वेज का चाउमीन, रोल या मतलब जितने भी वेज रिलेटेड आइटम्स है सारे आइटम्स वहाँ पे मिलेंगे रिलेटेड टू फास्ट फूड, नॉट पूरी उपमा. ओके, तो आप लोगों ने ये डिसाइड किया. तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? आपका जो टोटल सिस्टम था, जो बिजनेस था, वो बिजनेस को पूरी उपमा टिफिन सेंटर से लेकर कहाँ पर चले गए? फास्ट फूड सेंटर में चले गए. फास्ट फूड वेज. ठीक है. फिर दुकान खोलने के बाद उसके 2-3-6 महीने बाद जब आपका बिजनेस ठीक से नहीं चला, फिर आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा कि मार्केट में जो है जितने भी लोग हैं मार्केट में नॉन वेज फास्ट फूड का डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू फास्ट फूड वेज सेंटर्स पे. ओके, तो अगर मतलब लोग जितने हैं, जितने लोग कस्टमर्स हैं आपके, दे आर प्रेफरिंग नॉन वेज फास्ट फूड शॉप as compared to the veg fast food, so that's why you decided to change your business again from veg fast food to non veg fast food. तो आप लोगों ने फिर से क्या किया? आपका जो बिजनेस था उसको फिर से चेंज कर दिया नॉन वेज बिजनेस फास्ट फूड में. ओके, सो फिर आपने बिजनेस को कंटिन्यू किया नॉन वेज फास्ट फूड में. ओके, तो ये क्या था? आपका जो ऑपरेशंस था, आपका जो एक्टिविटीज थे, वो एक्टिविटीज को आपने चेंज किया. आपका जो प्रोडक्ट जो आप लोग दे रहे थे मार्केट को उसमें आपने चेंज किया, प्रोडक्ट में चेंज किए, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज किए. सो देयर इज दैट इज कॉल्ड योर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. इट कैन बी पॉसिबल इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप बिजनेस. Generally, a sole tradership business means gas type of business. It treated as a small scale business or it is treated as a large scale business. Large scale business refers to the companies जैसे कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, जो बड़े बड़े बिजनेस में है वो आएंगे लार्ज स्केल बिजनेस में. बट द सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कम्स अंडर योर स्मॉल स्केल बिजनेस. ओके, तो अभी सोचो कि आपका जो स्मॉल स्केल बिजनेस था वहाँ पे आपने क्या किया?
अपना जो ऑपरेशंस था, अपना जो प्रोडक्ट था उसको इजीली चेंज कर दिए। जैसे कि पूरी उपमा से लेकर चले आए वेज वेज फास्ट फूड में, वेज फास्ट फूड से फिर से उसको चेंज कर दिया नॉन वेज फास्ट फूड में। ओके, बट अगर आपका यही सेम एग्जांपल रिलायंस के बारे में सोचो, रिलायंस जियो, रिलायंस जियो कंपनी जो है या फिर टाटा कंपनी जो है, रिलायंस जियो कंपनी अगर सोचेगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन लाइन में, जो इंटरनेट के लाइन में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है नियरली अबाउट कुछ 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ऐसे मतलब जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो लोग अगर सोचेंगे कि नहीं हम लोग कम्युनिकेशन लाइन में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है उसको लाके चेंज कर देंगे, कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो रिलायंस का एक कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, वहां पे वो लोग कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सोचो हो सकता है, या मतलब वहां पे ज्यादा लॉस होगा। कौन सी केस में द बिजनेसमैन फेस ए लॉट ऑफ रिस्क, ए लॉट ऑफ लॉस, कौन सी केस में ज्यादा लॉस होगा? रिलायंस को अगर वो लोग चेंज करेंगे उनको ज्यादा लॉस होगा, या फिर जो मतलब बिजनेसमैन जो पूरी उपमा से आ गया वेज फास्ट फूड, वेज फास्ट फूड से फिर से नॉन वेज फास्ट फूड में आ गया, किसको ज्यादा लॉस होगा? सोचो, who will bear huge amount of loss? The Reliance company, the large scale businesses, if they change their operation, then in that case they may face a lot of loss. But in case of sole tradership business, the businesses or the businessmen may face a limited amount of risk or a loss. Okay, so that point is flexibility in operation. A person can easily shifted from one activity to another activity, one product to another product, one market to another market. Okay, in case of sole tradership farm. Now the third point, keeping keeping business secrets. So what does it mean secrecy? Secrets, secrets मतलब क्या होता है? हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होता है। सिक्रेसी कुछ मतलब लिमिटेड चीजें होता है, कुछ सीक्रेट मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस में। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप सब पानी पूरी तो खाते ही होंगे, ठीक है, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों का मतलब एक मिली जुली इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट, इंटरेस्टेड आइटम है पानी पूरी। तो सपोज मान लो आपका जो मतलब बरमपुर में खलीकोट ग्राउंड है उसके बाहर उसके आगे बहुत सारे पानी पूरी शॉप्स है, उनमें से एक पर्टिकुलर दुकान का पानी पूरी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, बेस्ट पानी पूरी है मान लो, ठीक है, मैं तो नहीं जान रहा हूँ इसे मतलब बोल रहा हूँ, मान लो कि वो दैट इज द बेस्ट पानी पूरी है ना। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको वो पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, वो जो बिजनेस मैन जो है पानी पूरी वाला, उसके पास आपने कंटिन्यूअसली गए अप टू 5 डेज 6 डेज तक कंटिन्यूअसली गए। तो 5 दिन 6 दिन तक जाने के बाद आपने डेली वहां पे खाया, 10 रुपए का, 20 रुपए का, कभी कभी 50 100 रुपए का भी खा लिए, ठीक है, अच्छा है ना, तो खा लिए, 100 रुपए का भी खा लिए, ठीक है। तो अभी जो मतलब 7वें दिन आप लोग जाओगे वहां पे, 7वें दिन खाने के टाइम में अगर आप लोगों ने उसको पूछोगे, आप अगर उसको पूछोगे कि भैया आपका पानी पूरी तो बहुत ही अच्छा है, कैसे बनाते हो थोड़ा हमको ही बताओ, हम लोग भी घर में ट्राई करेंगे, पूछोगे तो या नहीं पूछोगे? सोचो, अगर मतलब ठीक है अगर पूछ लेती है, पूछ लिए, तो वो आंसर आपको बताएगा या नहीं बताएगा? क्या होगा आंसर? अगर आपने पूछा कि भैया आपका पानी पूरी बहुत अच्छा है, कैसे बनाते हो मुझे ये बताओ, मैं हमारे घर में ट्राई करूंगी या करूंगा, तो वहां पे होगा या नहीं होगा? वो आपको बताएगा या नहीं बताएगा? एंड द आंसर इज वो आपको कभी भी ठीक प्रोसीजर नहीं बताएगा। एक तो पहले वो मना ही कर देगा, अगर मतलब करेगा बताएगा तो भी वो ठीक से नहीं बताएगा। अगर वो ठीक से आपको बता दिया तो उसके अगले ही दिन क्या होगा, आप अपना एक ठेला लेके वहां पे रुक दोगे, अपना खुद का एक बिजनेस उसके पास में ही स्टार्ट कर दोगे। क्यों? एज ए कंपिटिटर ऑफ दैट बिजनेसमैन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द बिजनेसमैन और द सोल ट्रेडर इज रिक्वायर्ड टू कीप हिज बिजनेस सीक्रेट अमंग हिमसेल्फ। तो उसका जो बिजनेस का जो सीक्रेट है वो अपने पास ही रखना पड़ेगा, उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज कीपिंग और रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रखना, रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स with the sole trader. This is the fourth point. Direct
incentive. So what does it mean direct incentive? Direct incentive means incentive मतलब reward, ठीक है, reward हो सकता है या फिर bonus, benefits कुछ भी हो सकता है, ठीक है. So direct incentive. As we already know, in case of sole tradership business, there is only one owner is there, and that owner is required to put his heart and soul in the business in order to earn more and more profit from the business. Heart and soul मतलब क्या होता है? ऐसे मतलब हाथ निकाल के लेके रख देगा क्या? नहीं है. Put his heart and soul in the business. That means he put his 100% effort in his business. अभी जैसे कि आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग मतलब अपना 100% एफर्ट दे रहे हो एग्जाम के लिए. कुछ बच्चे दे रहे हो, कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं, ठीक. दैट इज द अदर थिंग लेफ्ट दैट. ओके, सो हियर द पॉइंट इज द डायरेक्ट इंसेंटिव मींस the sole trader of the business or the owner of the business is required to put his all effort in the business. Why he put all effort? In order to earn more and more profit from the business. If he put 100% effort, then he can earn more profit. If he put 20% effort, then he can earn less amount of profit. So that's why the businessman is required to put 100% effort to earn more and more profit from the business. Okay, so that's why this point says that direct incentive. जितना ज़्यादा effort देगा उतना ज़्यादा reward मिलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा benefits मिलेगा directly sole trader को. Then the fifth merit is promptness. Promptness in डिसीजन मेकिंग, ठीक है. क्विकनेस इन डिसीजन मेकिंग. प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या होता है? क्विकनेस. इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप द बिजनेसमैन कैन टेक बिजनेस डिसीजंस क्विकली. क्विकली मींस what does it mean? Promptness means quick decisions can be taken in case of sole tradership business. Why the sole trader is able to take quick decisions? Why? कुछ है उसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, अभी आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि मतलब अभी आपका बीएमएस में पार्टनरशिप चल रहा है, तो पार्टनरशिप में कितने पर्सन होते हैं? मोर देन वन पर्सन एंड दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस. सो पार्टनरशिप में क्या होता है? एक से ज्यादा पर्सन होते हैं. मान लो 2 4 5 जन है या फिर 10 पार्टनर है बिजनेस में. तो जो जितने भी बिजनेस डिसीजन होता है वो डिसीजन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? सारे पार्टनर्स के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. Okay, before taking any important decision, we have to make consult with the other partners of the business. Then only the decision can be taken. But that is not required in case of sole tradership business. Why that is not required? Because there is only one person is there, and he is the sole authority of the business. So that's why he can take all the business decisions. एंड जो मतलब सोल ट्रेडर को अच्छा लगा वो अपना डिसीजन डायरेक्ट ले लेगा. देयर इज नो आउटसाइड इंटरफियरेंस इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप बिजनेस. कोई दूसरा आदमी नहीं है जिसका मतलब इंटरफियरेंस होगा सोल ट्रेडरशिप में. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ क्विक डिसीजन कैन बी टेकन इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप. देन द सिक्स्थ पॉइंट, direct contact with कस्टमर. होगा या नहीं होगा? सोचो, जितने भी हमारे आसपास में दुकान से वो सारे दुकान मतलब वो कोई ग्रोसरी शॉप ले लो या फिर कोई होटल ले लो या फिर कोई जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस, जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस है वो सारे बिजनेस में क्या होता है? पर्टिकुलरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द ओनर. ओके, जो ओनर है उसका डायरेक्टली रिलेशन रहता है किसके साथ? कस्टमर के साथ. बट जो कि मतलब लार्ज स्केल बिजनेस में पॉसिबल है क्या? सपोज मान लो अभी आप लोग क्या करोगे, एक रिलायंस जियो का सिम खरीदने के लिए दुकान जाओगे और रिलायंस जियो के सिम खरीदने के टाइम आप बोलोगे अगर मुकेश अंबानी आएगा मुझे सिम देगा तभी जाके मैं खरीदूंगा. इज इट पॉसिबल? मुकेश अंबानी आपको आके एक सिम देगा क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई ये तो नहीं हो सकता है. बट इन केस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस, अगर एक छोटा बिजनेसमैन है वहां पे क्या होता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन customer with the owner, sole trader with the customers. So
that's why the point says that direct contact with the customer is possible in case of sole tradership. Then the last one is independent control. So what is the point suggest? Independent control. Independent control मतलब fully control. जो मतलब control होता है business का, the total authority of the business is kept with whom? Is kept with the sole trader. So he is the sole authority of the business. He is the only owner of the business. That's why the total control of the business. Control means all the decision making capacity, all the business management decisions, all the controllings. So in the hands of the sole trader. So he is the sole authority of the business. So dear students, this is all about your various importances of sole tradership. I hope all of you have a very good clear idea about this topic. Still, if you guys are having any doubt, you can call me. Thank you and have a nice day.